चरणों में दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु सारी माता जी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी, आरंभ कीजिए। जी प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, वंदु मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार्य बंधु, लोकनाथ लोकीर जीवाना, लोकनाथ लोकीर जीवाना। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। ए बीजश खुशक त्रिभुवना, ए बीजश खुशक त्रिभुवना। Start transcription. Similar to a recording, the transcription will be sent to the meeting owner as a doc with exact details on who said what. So there you have it. Transcribe your meeting in one easy.
In this video, I'll show you how to transcribe and caption your Google Meetings in real time using Otta's AI Chrome extension. Hi, my name is David, and in this video, I'll take you step by step from the setup of Otta AI's Chrome extension on your web browser to using it to transcribe and caption your Google Meetings. Welcome to this video. Let's begin. So I'm inside the Chrome web store, and this works on Google Chrome alone at the time of recording this video. And once we search for Otta, the first result, Otta.ai is what we want in real time, and save audio transcripts to your Otta AI account. Just click on that, and then let's add it to Chrome. Click on Add Extension, application. So we get to the new page, Otta AI plus Google Meet, Otta AI Chrome extension for Google Meet. These are just basic setups of what you need to do. You need to pin the extension onto this particular toolbar. Then you need to log into your account if you have one. You can just sign up, and then once you begin your meeting, then you'll need to click on record so that you can automatically transcribe and caption your Google Meetings. So let's first of all begin by pinning our button. Let's just pin it. Click on this particular button. This is the extensions button. And then click on Otta here, this particular pin, and it's going to pin Otta here. So once it's pinned, all we need to do now is just open up our meeting, that is meet.google.com. And once so you don't have, it's also going to pull up our, if the microphone is the microphone that you want to be recorded. For me, it's okay. And then the camera, let's just click on done. And we'll show you that the signal is going in as it should be. So the next thing is that you can choose where you want to share. By default, Google Meet is a good thing. You enter a screen. Hare Krishna, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम. सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम. माता जी दंडवत प्रणाम. माता जी आप आपका नंबर सेव किया माता जी, मैं कॉल करूंगी आपको. आप सेव किया? सुना माता जी, मैंने नंबर आपका सेव किया हुआ है. मैं कॉल करूंगी आपको. ठीक है. Which is a good thing for you if you want, if you had a meeting that you want to take to your Chrome browser, and once you're done, so you can see it has the date, and it's from Google Meet, and the transcript is available for you to make any edits that you want to do or to make to this particular transcript. So that is how को एक स्वामी के नीचे रहना चाहिए, जो उसके बात को अनुसरण करके चलना चाहिए. शास्त्रों को Google Meet जितना will भी हम never शास्त्र be the पढ़े, जितना same. भी हम माला करें, फिर भी ये नहीं होता. पर एक जो व्यक्ति होना चाहिए, जो वैष्णव हो सकते, गुरु हो सकते, आध्यात्मिक गुरु, उसके नीचे हमें रह के अनुसरण करना चाहिए. और कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनकी बात हम ना सुने, जो हम जिसके ऊपर रहते हैं, जो मतलब जो हम जिसके नीचे रहते हैं, जो व्यक्ति के नीचे, तो हम रहते कभी उनकी बात नहीं सुनना चाहिए. यार कितना बोलेंगे, फिर भी नहीं, हमें उनकी बात अच्छा लगे या ना लगे, हमें उनकी बात सुनना चाहिए. भगवान के दृष्टि में समान अधिकार होते हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसे लगता है कि कोई देखे या ना देखे. जैसे भागवत में फर्स्ट कंठ में ये लिखा हुआ है, जो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं कि आप चलता फिरता भागवत हो, आप चलता फिरता तीर्थस्थली हो. तो ये कहते हैं, तो गुरुजी ने ये भी प्रश्न कहा था कि ये हम भी बहुत सारे वैष्णव को देखते हैं और बोलते हैं, जी आपको देख के जीवन साथ हो गया, आप तो चलते फिरते आप तीर्थस्थली हो. तो ये गुरुजी ने ये उद्देश्य करके बताया था. और फिर आता है 31 हुआ था आगे तक, और हमारा 32 बोल रही हूँ, 61 तक हुआ था. 62 भगवान कहते हैं कि मैं संत के हृदय में रहता हूँ, और मैं उनको संत के मैं हृदय में रहता हूँ. मैं संत को छोड़ के मैं किसी को नहीं जानता, और वो भी मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनको छोड़ के किसी को नहीं जानता. ये 62 था. 63 था. और ये भी आता है, जितने भी सारे भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त थे, वो सारे सब तीर्थस्थली के रूप में होते हैं. 64 होता है, तीर्थस्थली पवित्र स्थली है, जो भक्त के द्वारा तीर्थस्थली होते हैं. और एक पॉइंट बताया था, जो भगवान के भक्त और साधक शुद्ध भक्त, इसके द्वारा हम मतलब स्थली जो शुद्ध मतलब तीर्थस्थली होती है.
65 और 66 में गुरुजी ने कहा था भगवान के अवतार 3 श्रेणियों में है, एक आंशिक अवतार, एक गुणवत अवतार और एक सत्तावेश अवतार। 67 में बताए थे जो गुणवत अवतार होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव और चतुर्थ कुमार और राजा पद्म और वैष्णदेव, ये सत्तावत अवतार है। 68 है भगवान के व्यक्तित्व दुई प्रकार के है, एक प्रकाश और एक विनाश। 69 और 70 में गुरुजी ने कहा था कि भगवान की स्वरूप माने व्यक्तित्व प्रकाश स्वरूप में होते, जैसे 16,108 रानियों के बीच में वो विभाजन करे अपने खुद को एक एक समान को। सब रानियों को लगता था कि भगवान उनके साथ ही है। और आचार्य जो भी ये भी कहता है 16,000 इस एक रूप में विस्तारित किया, ये विस्तारित रूप होता है। जैसे राधा रानी के संग जब वो विहार करते थे, जब रासलीला करते, सब जितने भी रानियां रहती थी वहां पर सबको लगता था कृष्ण मेरे साथ ही है। और ये जो है ना एक एक महल उन्होंने 16,108 रानियों के लिए महल निर्माण कृष्ण ने करवाया था। तो वो उनके प्रत्येक महल में वो रानियों के साथ ही विराज करते थे। और 72 में बताया भगवान जो राखाल मतलब जो चौराहा जो रहता है, राखाल वाला जो रहता है, जिनके साथ वो रहते थे, उनको भी लगता था कि भगवान हमारे जैसे है, हमारे साथी है। तो उनको भी ये अनुभव होता था। जब भगवान रासलीला करते थे सभी रानियों को, सभी गोपियों को ऐसा लगता था कृष्ण मेरे साथी है। ये 72 वाला है। 73 और 74 वाला है, ये भगवान भगवान के अद्भुत लीला देख के आकाश में जो देव देवी है वो नृत्य करते थे और वो उड़ू विमान में घूमते थे। 75 में यदि अनेक रूप में भगवान बहुत रूप में प्रकाशित होते हैं तो उसको प्रकाशी रूप कहते हैं। भगवान बहुत रूप में प्रकाशित होते हैं हर एक जगह पे। और 76 में है विलास विग्रह, भगवान के असंख्य रूप होते हैं जो भगवान के साथ भिन्न भिन्न में विलास विग्रह में रहते हैं। और 77 है भगवान असंख्य रूप में असीम है, भगवान असंख्य जगह पे असंख्य रूप में असीम है भगवान। और फिर वैकुंठ धाम में नारायण, बलराम, वासुदेव, शंकरचंद, पद्मन और अनंत कोटि नारायण है, अनंत कोटि लक्ष्मी है, अनंत कोटि वैकुंठ है। गुरुजी ने भी कहा था अनंत कोटि है। 78 में कहते हैं जो भगवान एक ही समय में सब जगह उपस्थित हो सकते हैं। भगवान एक ही टाइम में सब जगह उपस्थित हो सकते हैं। 79 और 80 में है भगवान की शक्ति वैकुंठ लक्ष्मी के मतलब भगवान की जो शक्ति है वो वैकुंठ लक्ष्मी और द्वारका में रानी, वृंदावन में गोपी, और ये 3 जगह में सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन में गोपी। 81 में भगवान गुरुजी ने बताया भगवान कृष्ण पाश्चात्य भगवान के जो पार्षद होते हैं वो भगवान से भिन्न होते हैं और भक्तों में सर्वदा खुशी फैलाते हैं। और एक 82 में बताया विभिन्न स्तर पे भक्तों के पूजा ये बताया जब विभिन्न स्तर पे भक्तों को पूजा विभिन्न स्तर पे हम भक्तों की पूजा करते हमारे सौभाग्य को प्राप्त होती है। और गुरु ने प्रश्न लिखा था कब हमें सौभाग्य प्राप्त होती है, और जब हम भगवान के भक्त की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा को प्राप्त करते तब हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 83 में बताया प्रथम श्लोक मतलब फर्स्ट श्लोक में भगवान ने बताया मैं परम पिता हूँ, आशीर्वाद प्रार्थना कविराज जी ने बताया कि मैं परम पिता को प्रार्थना करता हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, जो भी आप जो भी करते हैं, जितना भी करता है वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। आपने जो भी सोचा है, जैसा भी सोचा है, आपने मेरे लिए अच्छा ही सोचा है और मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी एक बताता। और 84 में बताया नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। और 85 और 86 में बताया कृष्ण और बलराम अवतार, नित्यानंद राम और चैतन्य अवतार ये कृष्ण है। 87 में बताया भौतिक जगत में आनंद उपलब्धि में चैतन्य महाप्रभु विस्तारित रूप में आते हैं। 88 में 89 में बताया ये दुई जो भाई है ये अज्ञान को दूर करने के लिए आए हैं विकास के रूप में।
एक मिनट प्रभु जी, और एक पेज। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा दंडोत। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम प्रणाम साहिब आपको प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूले सरस्वती देवे चारिणे शून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपिकांत राधाकांता नमोस्तुते। वृषभानुसुते देवी मामी हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। आवाज मेरा आ रहा है अशोक चावला? आ रहे गुरु जी। ओके, कुछ था ना, विशेष था आज कुछ, तो आपको याद है जी? तो आज श्रीवास ठाकुर का कुछ तो तिरोभाव दिन था ना, आविर्भाव या तिरोभाव? जी श्रीवास पंडित जी का ऑक्सीजन दिवस है। और एक गुरु जी एक अनाउंसमेंट भी है, अगर आप आज्ञा हो तो। जी आज करुणा माता जी का जन्मदिन है। हम उनके व समस्त परिवार को श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और उनके सुखद स्वास्थ्य आशीष में कृपा में भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य श्री गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। यह भी प्रार्थना करते हैं माता जी सदैव भक्ति में लगे रहें। और दूसरी बात उसकी हरिद्वार यात्रा ही करनी है अनाउंसमेंट गुरु जी, मैं बोल दूँ? हाँ जी, बोल दीजिए। एक मिनट 2 मिनट में ही बोल दीजिए, ज्यादा मत टाइम जी। हरे कृष्णा। 24 मई से 27 मई तक गुरु जी के नेतृत्व में हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा निकाली जा रही है। जो भक्त इसमें भाग लेना चाहते हैं, भक्तों का गुरु दर्शन करना चाहते हैं, कृपा करके वो अपनी टिकट बुक करा लें हरिद्वार के लिए। 24 से 27 मई तक यह यात्रा रहेगी और पर हेड 2500 रुपये 2500 रुपये होंगे, जिसमें आपकी रहने की व्यवस्था है 4 दिन की, खाने पीने की व्यवस्था बीच में ही है आपकी।
तो जो जाना चाहे, गुरु का संग करना चाहे, गुरु सेवा संग करना चाहे, वो तो अपनी बुकिंग करा के इन्फॉर्म कर दीजिएगा गुरु जी को या मेरे को। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 बार महामंत्र बोलना। 3 बार हम हाँ 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को बहुत तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन रखिए। और जरा अपने माइक का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सब लोग क्या है, जब माइक ऑन करते हैं तो भूल जाते हैं माइक को ऑफ करना। थोड़ा सा अपने माइक का ध्यान रखिए ताकि क्लास को कोई असुविधा ना हो। और कैमरा हमेशा इस तरीके से ऑन रखें ताकि आपका चेहरा उसमें विजिबल हो। तो श्रीवास ठाकुर जी का आज आविर्भाव दिन है, तो हम उसके आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला का। और अंतिम 10 मिनट में हम श्रीवास ठाकुर के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, ओके। तो चैतन्य चरितामृत का पहला अध्याय है, हमने पूरा किया था कल। पहला अध्याय का नाम है अध्यात्मिक गुरु, जिसमें कविराज गोस्वामी है। वह किताब लिखने से पूर्व जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं उनको ज्ञात है, उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप मुझे कृपा कीजिए मेरे ऊपर, ताकि मैं इस चैतन्य चरितामृत पुस्तक का या ग्रंथ का अवलोकन कर सकूं या वैष्णव की प्रसन्नता के लिए इसको लिख सकूं। तो कौन मुझे बताएगा कि कविराज गोस्वामी ने इस किताब को लिखने के लिए क्यों लिया था? हाँ, फिंगर प्रेस कीजिए। कविराज गोस्वामी ने इस किताब को लिख लिया था, किसी को पता है या किसी को पता नहीं है? कविराज गोस्वामी है, उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए क्यों लिया था, क्या कारण है? यही पता नहीं आपको, कैसे होगा फिर? जी, क्यों लिया था? ओके जी, बताइए ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इस किताब का लिखने का प्रयोजन अपने बताए थे कि हम भगवान को याद रख सके और किसी के सामने हम हमारा सर झुके, ताकि हमारे में जो अहंकार है वो चला जाता है सर झुकाने से। ये 2 पॉइंट अपने लिखवाया था पहला स्टार्टिंग को, इस किताब का प्रयोजन है। नहीं वो अलग था, वो जी नहीं ठीक। मैं यहाँ पर सवाल थोड़ा अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि कविराज गोस्वामी ने इस किताब को लिखने के लिए क्यों लिखना चाह रहे थे? वो क्या ऐसा हुआ था उनके जीवन में कि उन्होंने उम्र की 95 या 94 उम्र में उन्होंने इस किताब को लिखना लिया था? जी ओके, सुजाता। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का प्रचार करने के लिए वो जब उनको आदेश मिला था, जो चैतन्य महाप्रभु का ये वो चले गए थे, अपने धाम चले गए थे, इसलिए उनका प्रचार करने के लिए उनके आंदोलन का ये लिखना, ये पुस्तक लिखना। तो उत्तर थोड़ा सा नजदीक है लेकिन पूरा नहीं है, पूरा उत्तर चाहिए मुझे, मैंने बताया था। जी, वृषाली तट।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आगे जाके कलयुग के लोग को पता चले कि चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं भगवान है और भगवान किस लिए यहाँ इस धरती पर आए थे, हरि नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये भी नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं है जी। सुजाता माता जी ने जो दिया था उसके ही करीब था उत्तर जी। रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। वही जो माता जी ने दिया वो है, और उनको बोला था रघुनाथ गोस्वामी ने और रूप गोस्वामी ने उनको जीव गोस्वामी ने उनको लिखने के लिए बोला था, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने। और जो सुजाता माता जी ने दिया वो आंसर मुझे पता था कि ओके जी। तो सबका उत्तर थोड़ा सा लिखिए, क्योंकि मुझे लगता था, आपको मैंने बताया था आप लिखते नहीं, इसके लिए आप भूल। कविराज गोस्वामी ने इस किताब को क्यों लिखने के लिए लिया था? सबसे पहला है कि उस समय जितने भी आचार्य थे, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, उस समय जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को नहीं देखा था। भगवान चले गए थे भगवत धाम में। गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु भगवत धाम चले गए थे। तो उस समय के वैष्णवों ने कविराज गोस्वामी के पास आकर ये प्रार्थना किया या निवेदन किया कि हम गौर निताई को देख नहीं सके हैं, तो एटलीस्ट आप उनको उनकी लीलाओं को एक किताब में किताब के रूप में लिखिए, ताकि हम उसको पढ़ते हुए उनको याद कर सके। ये दूसरा रीजन है, दूसरा पॉइंट है। तो इसलिए सारे वैष्णवों ने उनको किया कि आपने रघुनाथ दास गोस्वामी से गौर कथा है वो सुनी है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए हमारे लिए, ठीक है। ऐसे 3 पॉइंट आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों लिखा गया है क्या कारण है यह हमको पता नहीं है, तो कैसे होगा, ठीक है जी। ओके, तो लिख लिया सबने, तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कविराज गोस्वामी ने क्यों लिखा ये ग्रंथ। ओके, और ऐसे ही एक बार आवश्यकता पड़ी थी, आपको याद है मैंने एक बार बताया था जो पुराने भक्त हैं उनको, कि जब शिल प्रभुपाद जी चले गए थे इस संसार से, है ना, तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जब शिल प्रभुपाद जी संसार को छोड़कर चले गए तो उनके सारे शिष्य है प्रभुपाद को खोज रहे थे कि प्रभुपाद जी हमारे साथ नहीं है, अभी हमको छोड़कर चले गए। उनके सारे भक्त अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अलग अलग जहाँ पर अपने केंद्रों को संभाल रहे थे। तो वो हमेशा इसी ताक में रहते थे कि प्रभुपाद जी अगले महीने आएंगे, प्रभुपाद जी 4 महीने के पश्चात आएंगे। पिछले साल भी वो आए थे, लेकिन उनका हृदय इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था कि हमारे आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद जी हमें छोड़कर चले गए। तो फिर सारे वैष्णवों ने एक साथ आकर किनको विनती की, कौन बताएगा मुझे, कि आप प्रभुपाद जी के बारे में लिखिए ताकि हम उनको पढ़कर उनको याद करें। जी बताइए, एटलीस्ट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे कि किसको श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने विनती की कि प्रभुपाद जी के बारे में आप लिखिए ताकि हम उनको पढ़कर, है ना, लाभान्वित हो। जी जुम्मा गोराई। जी कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जहाँ तक आपने बताया कि सतस्वरूप महाराज को बताया था कि वो ग्रंथ लिखे गुरु जी। हाँ, वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर है, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज है जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं रह रहा है, या हमारे आंखों के सामने से चला गया है, या हमारे इस भूलोक से चला गया है ना, शरीर को छोड़कर, तो उनको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है जी? तो आसान तरीका क्या है कि उनके बारे में आप
पढ़ते रहिए, उनके बारे में आप चर्चा करते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए। तो ये कैसा है? उनको उनके साथ रहने के जैसा ही है, बराबर है। कितने लोगों ने अनुभव किया है अपने जीवन में? आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक भी हो सकता है। जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। जो अभी अभी हमने कहा आपको कि अगर कोई, जैसे शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया हमने, फिर चैतन्य महाप्रभु का, और फिर मैंने उसको तीसरा कनेक्ट किया अपने निजी जीवन में, किस तरह से हम हमारे आंखों के सामने, या फिर अगर कोई गुजर भी गया होगा, है ना, परिवार में वगैरह, तो हम उनको याद करते हुए, चर्चा करते हुए हम उनको अपने करीब पाते हैं। ठीक है, तो ओके, तो इस तरीके से जी ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसलिए सबसे आसान है, किसी के साथ रहने से भी ज़्यादा बहुत आसान चीज़ है कि उनके बारे में पढ़ के, उनको याद करके उनके साथ रहना। तो यही शिल प्रभुपाद जी के लीलामृत में हमने पढ़ा, फिर हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो सेकंड चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो अगर किसी के पास चैतन्य चरितामृत करके ग्रंथ है तो थोड़ा सा आप ले लीजिए, उसको खरीद लीजिए, है ना, इस मंदिर से, तो ताकि हम आप उसके सामने वो हमेशा कॉपी रहे। ठीक है, तो लिखिए, दूसरे अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जी ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु के जितने भी गौर भक्त हैं उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो लिखिए, पहला श्लोक लिखिए। तो अभी हम धीरे धीरे जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे चलने के अपने आप अभी स्लो हो जाइए कि चीटी के माफिक हम चले जाए। थोड़ा सा हमको बैलेंस भी करना है, तो आप लिखते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। तो पहला श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि ये जो किताब है इसमें इमोशन बहुत भरे हुए हैं। इमोशन मतलब भावनाएं। कैसे है देखिए, पहला श्लोक में वो कहते हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रणाम करता हूँ। तो मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिन दया से अज्ञानी बच्चा भी भगवान के बारे में जान सकता है, या फिर परम सत्य के बारे में जान सकता है, या भगवान के बारे में जान सकता है, तो विभिन्न सिद्धांतों के मगरमच्छ से भरा हुआ है। कितनी सुंदर उपमा दी है यहाँ पर, कितना सुंदर यहाँ पर देखिए लिखते हैं काव्यात्मक रूप से कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनकी दया से, मतलब जिनकी कृपा से मुझ जैसा अज्ञानी बच्चा भी भगवान के बारे में जान सकता है, जो सागर की तरह है, समुंदर की तरह है। परम सत्य कैसा है? समुंदर की तरह है। समुंदर को नाप सकते हैं, समुंदर को नाप सकते हैं। जैसा अगर आप जगन्नाथपुरी गए होंगे, है ना, हम 2-4 महीने 6 महीने पहले गए थे, तो जगन्नाथपुरी के समुंदर को हम देखते थे तो उसकी सीमा दिखाई नहीं देती थी, बराबर है। तो समुंदर को आप नाप नहीं सकते। उसी तरह से परम सत्य भी कैसे है? समुंदर की तरह है, सागर की तरह है। और उसमें जो सिद्धांत है ना, परम सत्य के बारे में वेदों में, शास्त्रों में, ये सिद्धांत मगरमच्छ की तरह है ना। देखिए ऐसा बताया गया है। तो अगर हमको अभी समुंदर में प्रवेश करना है तो हमें किनसे बचना चाहिए? कौन बताएगा? किनसे बचना चाहिए? अगर हमें शास्त्र रूपी समुंदर में अगर हमको प्रवेश करना है तो हमें मगरमच्छ रूपी लोगों से बचना चाहिए, या मगरमच्छ रूपी सिद्धांतों से बचना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अपने शब्दों में लिखिए। बहुत सुंदर ये श्लोक है, पहला श्लोक। तो इसमें आप लिखिए,
दया मतलब क्या है? चार चीजें हैं। दया मतलब भगवान की कृपा। इच्छा कौन है? यहाँ पर कविराज गोस्वामी अपने आप को। समुंदर क्या है? समुंदर है परम सत्य। मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ है वेदों में जो ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, या फिर हम अलग चीजों में प्रवेश करते हैं ना, मायावादी हो या इस तरीके से। ठीक है, सबको क्लियर है? पहला श्लोक या किसी को समझ में नहीं आ सकते तो मैंने इसकी सागर की उपमा भी दी, मगरमच्छ की उपमा बताई आपको, बच्चे की उपमा बताई, अज्ञानी बच्चा, है ना। तो कोई भी चीज, अगर आपको किसी भी चीज कोई कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में कोई भी, तो पहला हमारा ये शब्द होना चाहिए कि मैं अज्ञानी बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। दूसरा है कि भगवान का विषय आप मुझे बोलने के लिए बता रहे हैं, लेकिन भगवान का विषय ये समुद्र की तरह है, मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या समुद्र को कोई नापता है? कोई नाप नहीं सकता। लेकिन आपने मुझे कहा है, इसके लिए मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को संतुष्ट कर सकूं। ये भाव वैष्णव भाव कहलाता है, और इसी भाव को हमको ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, अब आप सुनिए, बैठिए, देखो मैं कितना विद्वान हूँ, ये हमारा भाव नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक में। तो इसमें जो मगरमच्छ के जो सिद्धांत है आपको जानने हैं थोड़ा सा डिटेल में, कितने लोगों को जानने हैं? तो फिर मैं आपको एक लाइन में बोल देता हूँ मगरमच्छ के सिद्धांत क्या है जी। तो आप लिखिए फिर मगरमच्छ के सिद्धांत क्या है, तो आपको बताता हूँ मैं। मगरमच्छ के सिद्धांत है जैसे है कि 6 दर्शन शास्त्र है, उसमें लिखिए सबसे पहले है पतंजलि, पतंजलि है, उसके बाद कणाद, कपिल, दत्तात्रेय, है ना, पतंजलि शास्त्र है, फिर कणाद, कपिल, दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां है, फिर बुद्ध का दर्शन है ना, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन मतलब बुद्ध की तत्व ज्ञान, अहिंसा ही परमो धर्मो। उसके बाद ये जो ज्ञानियों की तर्कपूर्ण प्रणालियां है, ये सारी चीजें प्रभुपाद कहते हैं कि अज्ञानता के सागर में खतरनाक प्राणी है मगरमच्छ, है ना। कितना सुंदर उपमा दिया है, इन्होंने काव्यात्मक उपमा दी है यहाँ पर। तो ये जितने भी फिलोसॉफी है, कणाद, कपिल, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय की फिलोसॉफी हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। दत्त गुरु को हम भगवान के अवतार मानते हैं जो दत्तात्रेय है, लेकिन उनका तत्वज्ञान हम स्वीकार नहीं करते। गौतम बुद्ध भी भगवान के अवतार है, लेकिन उन्होंने कहा हुई चीज हम फॉलो नहीं करते हैं। आदि शंकराचार्य शंकर के अवतार है, लेकिन हम उनकी फिलोसॉफी भी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको समझना होगा श्लोक को, तब जाके हम सही निष्कर्ष पर आ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम सेकंड श्लोक में जाते हैं। कितने लोग लिख रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। मैं अभी स्लो जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि लिखिए भी सब लोग। थोड़ा समय निकालिए अपने आप को, है ना। अपने लिए समय देना ये सबसे बड़ी बात है इस संसार में, है ना। अगर मैं अपने आप को समय नहीं दूंगा तो फिर मैं दूसरों को कैसे समय दे सकता हूँ? तो पहले अपने आप को एजुकेट करने के लिए समय निकालिए। दत्तात्रेय के क्या सिद्धांत है? दत्तात्रेय के क्या सिद्धांत है? भगवान दत्तात्रेय के क्या सिद्धांत? दत्तात्रेय का सिद्धांत क्या है? हाँ, तो ये तीसरे, अभी हम भागवत लेंगे ना, तीसरा अध्याय, तो उसमें सारे अवतारों के बारे में बताया है ना। तो उस समय में आपको जितने भी अवतार हैं, गौतम बुद्ध है, दत्तात्रेय है, इनके सारे चीजें मैं बताऊंगा आपको। अगर 6 दार्शनिक सिद्धांत भी आपको सीखना है तो आपको इंटरेस्ट है ये मगरमच्छ के सिद्धांत क्या है, तो वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आध्यात्मिक जीवन में मैक्सिमम लोग इस मगरमच्छ के मुंह में चले जाते हैं। जैसे कणाद की फिलॉसफी है, पतंजलि है, पतंजलि योग प्रणाली है, या फिर कपिल मुनि है एक है जो कहते हैं कि बस केवल मजा मस्ती करो, जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी आप मर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फिलॉसफी है ना, वो मगरमच्छ की तरह है। तो उसको कहते हैं दर्शन शास्त्र कहते हैं, है ना, दर्शन शास्त्र, लेकिन वो सब गलत है। तो बताऊंगा आपको कभी जी। दूसरा श्लोक पे हम प्रवेश करते हैं। अभी वो कहते हैं कि हे मेरे दयालु भगवान चैतन्य, है ना, आपकी अमृतमय लीला है
वो गंगा जल की तरह है। देखिए कितना काव्यात्मक लिख रहे हैं। देखो आपकी जो दिव्य लीला है वो अमृत में गंगा जल की तरह है ना। और मेरा जो जीवा है, ये मेरा जीव है ना, ये कैसा है? ये मरुस्थल की तरह है। मरुस्थल मतलब क्या है आप जानते हो? मरुस्थल किसे कहते हैं? रेगिस्तान को कहते हैं ना। मरुस्थल किसे कहते हैं? रेगिस्तान, जहाँ पर पानी का अभाव हो। ओके, हाँ, तो यहाँ पर भगवान का जो लीला है चैतन्य महाप्रभु का, वो कैसा है? वो है अमृतमय गंगा जल की तरह है। और मेरा जीवा, जीवा को क्यों कह रहे हैं वो? कौन मुझे बताएगा? जीवा ही क्यों कह रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए, ऐसे ही मत लिखिए। क्यों जीवा को ही क्यों बोला कि मेरी जीवा ये मरुस्थल की तरह है? कान को नहीं क्यों कहा? नाक भी तो है, आंखें भी तो है, लेकिन जीवा को ही क्यों कहा? जी जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है कि इससे ही हम भगवान का नाम लेते हैं। ही हम भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, भगवान का नाम हम लेते हैं, वो बात बराबर है, लेकिन यहाँ पर कविराज गोस्वामी अपनी बात कर रहे हैं। पान करने के लिए कहा गया, तो उसका टेस्ट जीवा पे ही आता है। ओके ओके, नेक्स्ट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या प्रभु जी? हाँ, आ रही है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि जैसा माता जी ने बताया, मुझे भी लगता है क्योंकि हम जिह्वा से ही भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, गान करते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं या सुनाते हैं, तो हमारी जो जिह्वा है वो मरुस्थल है और भगवान का जो अमृत में गंगा जल है वो गंगा जल है जो अमृत में, मतलब लाइक मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे भी यही लग रहा है कि हम जो नाम उच्चारण करते हैं और कीर्तन करते हैं वो हम जिह्वा से ही करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ना कविराज गोस्वामी के भाव में प्रवेश करने के लिए कह रहा हूँ, अपने भाव में मत प्रवेश कीजिए। मेरा यहाँ पर सवाल है कि कविराज गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना, ये मेरा सवाल। जी, विशाल लिखावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने एक बार उपदेश अमृत में हमें सिखाया था कि हमारे जीवा, उदर और हमारे जनेंद्रिय जो एक ही लाइन में है, अगर हम जीवा को अपनी संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सारी इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है और ये उत्तेजित होना हमारे भक्ति मार्ग में बाधक हो सकती है। क्षमा कीजिए। ओके, तो यहाँ पर इसका कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये जो जीवा है, इस जीवा से वो क्या करने वाले थे? तो इस जीवा से वह भगवान की कथाओं का ये करने वाले थे, बखान करने वाले थे या बोलने वाले थे, बराबर है। इसके लिए वह कह रहे हैं कि मेरे जीवा एक मरुस्थल की तरह है। मरुस्थल में मतलब कुछ क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की जो लीला है, चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, वह अमृतमय गंगा जल की तरह है। और जब अमृतमय गंगा जल है मेरे जीवा पर प्रवेश करेगी तो क्या होगा? मेरा जीवा मरुस्थल रहेगा क्या? फिर नहीं, मरुस्थल रहेगा क्या? क्योंकि वो अभी अमृतमय गंगा जल को वो अपने जीवा पर धारण करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा ना। उनकी जीवा कैसी हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी, बराबर है। तो इस तरह से लिखिए, ये बहुत काव्यात्मक है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से कविराज गोस्वामी है ना। जब हम किसी के मनोभाव को हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसे है, या आचार्य कैसे है ना। आप कोई भी जैसे लेखक होते हैं या कोई कविता करने वाले कवि होते हैं, अगर आप उनकी कविताएं पढ़ेंगे, अगर आप उनके लेखनी पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आता है कि इनका स्वभाव क्या है, ये इनकी सोच क्या है। इतनी ताकत होती है किसी के, है ना, काव्यात्मक कविता करने में और कोई भी पुस्तक ग्रंथ लिखने वाले लेखक का। ठीक है, हो गया। तो अभी और भी दूसरा खत्म नहीं हुआ है। अभी बताया गया है कि अभी इस जो जल है, इस जलों में या इस अमृत में गंगा जल में कोई गाता है, कोई नृत्य करता है या कोई भगवान के नाम का जाप करता है, तो क्या हो जाता है?
तो कमल के फूल है वो सुशोभित करते हैं, या कमल का फूल है वो खिल जाता है, और जो शुद्ध भक्तों के आनंद के निवास स्थान है। समझ में आ रहा है आपको? जब ये जीवा है जो मरुस्थल की तरह है, जिसमें भगवान चैतन्य की लीला प्रवेश करती है, तो ये हरी भरी हो जाती है जीवा, और हरी भरी जीवा होने के पश्चात हम जितना ज्यादा करते हैं भगवान के गुण रूप लीला का आश्रय लेके, तो उसमें कमल फूल सुशोभित होता है, और यही शुद्ध भक्तों का निवास स्थान है। ठीक है, तो कितनी सुंदर उपमा है। और इन भक्तों की तुलना 3 चीजों से की है। नंबर 1 हंस। हंस मतलब आप समझ जाइए, है ना, जो हंस होता है ना वो दूध और पानी को अलग करता है। दूसरा है बतख। बतख को क्या कहेंगे आप? तो बतख मतलब जो ये होता है ना, डक पानी में तैरती है। हाँ, बतख होता है जो उनका चोंच भी एकदम बड़ा होता है। हाँ, डक बराबर, ओके, बतख। और तीसरा है मधुमक्खियां, इनसे की जाती है। ठीक है जी। तो अभी मेरा सवाल है कि ये 3 लोग क्या करते हैं? हंस तो समझ में आ रहा है कि दूध और पानी को अलग करता है। मधुमक्खियां भी समझ में आती है, जो हमेशा फूलों के आसपास ही फूलों से मधु इकट्ठा करने में लगी रहती है। लेकिन बतख का कौन मुझे बताएगा? कोई खास स्पेशलिटी बतख का अगर आपको याद होगा तो। ओके, जी, बतख क्या करता है? रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे बतख है, बतख का जो ध्यान होता है उसका ध्यान एकाग्र होता है, और जैसे हम कहते हैं कि एकाग्र चेष्टा वकोन ध्यानम स्वान इंद्रा त्वचा, तो इसमें जो बतख का है, तो उसको ध्यान के लिए उसका वो क्या आता है कि ये चलते चलते ही मछली को पकड़ लेता है समुद्र से। हरे कृष्णा। हाँ, ओके, जी, हाँ, वेरी गुड। तो ये 3 चीजें हैं, तो यहाँ पर हमेशा इन 3 लोगों को आप याद रखिए। कविराज गोस्वामी इनका तीनों का आप बखान करते हैं। नंबर 1 हंस, नंबर 2 वो बतुआ जो एक पैर पे खड़ा होता है और उसकी निगाहें केवल मछली की तरफ होती है और तुरंत वो पकड़ लेता है। आपको पता है जो मछुआरे होते हैं ना वो पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर मछुआरा और भगत अगर दोनों है ना, एक साथ आकर कोई बिजनेस डील करे, तो मुझे लगता है कि मछुआरों को बहुत फायदा होगा उससे, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी वो काम करता है ना। तो ये हो गया बछुआ। और तीसरा है मधुमक्खी। अभी मधुमक्खी है और कमल का फूल है, तो आप समझ जाइए कि मधुमक्खियां है वो फूलों के आसपास का उसके में से जो मधु इकट्ठा करती है। तो इस तरीके से मधुमक्खी भी भक्त है और वो हंस भी भक्त ही है, और तीसरा जो बतुआ है वो भी भक्त ही है। आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई प्राणी है, यहाँ पर उपमा दी गई है। कितने लोगों को ये समझ में आया? दूसरा श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, फिंगर को रेज कीजिए। जितना हो सके मैंने उसमें अच्छे से बताने का प्रयास किया, इसके आगे तो मैं बता नहीं सकता हूँ। ओके, तो जी, तो मैं आपको थोड़ा सा 2-3 सेकंड देता हूँ, आप उसमें लिखिए अपनी भाषा में जो मैंने आपको बताया, है ना। सबसे पहले लिखिए कि गंगा जल क्या है। यहाँ पर गंगा जल है भगवान चैतन्य की लीलाएं हैं। हमारी जीवा है वह रेगिस्तान की तरह है, और वो जब रेगिस्तान रूपी जीवा पर भगवान की लीलाएं प्रवेश करती है तो पूरी जीवा हरी भरी हो जाती है। हरी भरी का अर्थ है तृप्त हो जाती है। कैसे तृप्त हो जाती है? फिर यही जीवा भगवान का गायन करती है, भगवान का नृत्य करती है, हरि नाम को जाप करती है, भगवान का प्रसाद खाती है। तो फिर इस तरीके से करते करते इसी जीवा पर, हरे भरे जीवा पर कमल का फूल निकलता है, और यही कमल का फूल है वह शुद्ध भक्तों का निवास स्थान है, जहाँ पर ये निवास करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। उसके पश्चात फिर कहा गया है कि फिर
यहाँ पर फिर 3 जो पंछी है वो हमेशा ये गुमराह करते हैं, है ना, क्योंकि पानी में हमेशा बगुआ होता है ना, और दूसरा है ये भी होता है बतुआ होता है, और तीसरा है जो मधुमक्खी है वहाँ पर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कमल का फूल है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रयास कीजिए समझने का, चीज़ों को थोड़ा सा आप काव्यात्मक हो जाइए या फिर अपने सामने वो दृश्य लाइए। ये तभी हो सकता है जब आपका मन खाली हो। अगर आपका मन भरा हुआ है घर के कामों में तो शायद आप इसको विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है, तो तीसरे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं जी। तीसरा श्लोक है जी, तीसरा श्लोक में फिर वो कहते हैं अभी मैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो पंचतत्व को प्रणाम कर रहे हैं अभी वो। ठीक है, तीसरा श्लोक लिखिए कि वो नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, शिवास ठाकुर, हाँ, अद्वैत आचार्य और सारे गौर भक्त वृंद को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, है ना। चौथे श्लोक में अभी कह रहे हैं कि अभी मैं आपको, अभी वो वर्णन करेंगे, कह रहे हैं कि मैं 14 के तीसरे श्लोक का अर्थ बताता हूँ, है ना, जो परम सत्य का वर्णन करता है। ठीक है, तो मंगलाचरण है, अभी गा रहे हैं वो। तो तीसरा श्लोक में ऐसा ही लिखिए कि वह मंगलाचरण गाना चाह रहे हैं चौथे श्लोक में। पांचवें में लिखिए हाँ, पांचवें में लिखिए कि उपनिषद जो है ना, वह निर्विशेष ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति में वर्णित किया गया है। उपनिषदों को निर्विशेष ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति के रूप में वर्णित किया है, जो भगवान का तेज है या भगवान का प्रकाश है, भगवान का प्रकाश है। ओके, उपनिषद मतलब 108 उपनिषद होते हैं वो, जो वेदों का अंग है। वो किस तरह से है, वह भगवान के शरीर के तेज के माफिक है। फिर कहते हैं कि परमात्मा है वह भगवान का अंश है। परमात्मा स्वरूप ये क्या है, भगवान का अंश है। और कहाँ रहता है, तो कण कण में और हमारे भीतर रहते हैं परमात्मा। और तीसरा है वो लिखिए भगवान कृष्ण, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए, किसी को पता है 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? ये सबको आना चाहिए। 6 ऐश्वर्य किसे कहते हैं जी? 6 ऐश्वर्य जिसके लिए भगवान कृष्ण जाने जाते हैं। ओके जी, पद्मा कतारिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा वैराग्य, सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जी, रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान, धनवान, बलवान, वैराग्य और सर्वाकर्षण, सबसे ज्यादा सुंदर। एक लास्ट बचा है, कौन सा है, एक लास्ट बचा है, मुझे याद नहीं आ रहा, पता है बट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, पता हो जाएगा। ओके, तो जी, तो सब लोग लिखिए। पहला है भगवान सबसे सुंदर है। दूसरा है भगवान है वह धनवान है। तीसरा है भगवान वह ज्ञानवान है, नॉलेज। चौथा है भगवान शक्तिमान है।
स्ट्रेंथ, पांचवा है कि भगवान में और एक गुण है, वो है वैराग्य। और छठा क्या है? यशवान हो गया, यश, यश। तो भगवान सबसे प्रसिद्ध भी है, यशवान है भगवान। ठीक है, क्लियर है, भगवान यशवान है। ओके जी। तो ये ऐसे 6 ऐश्वर्य है भगवान के, जिसे कृष्ण कहते हैं। ठीक है, ये भगवान की व्याख्या है। अगर कोई कहेगा कि भगवान किसे कहते हैं, तो ये आपको बताना है कि जिसमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण तरीके से है, उसको भगवान कहते हैं। ओके, तो अभी हम जाते हैं कि चौथा श्लोक में, सॉरी चौथा नहीं, छठा श्लोक। कम से कम मैं चाहता हूँ 20 श्लोक तो कवर हो जाए, है ना, कोशिश करते। छठा श्लोक है कि जी, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये भगवान को जानने के 3 विषय है। ठीक है, निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा, भगवान। ठीक है, निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ क्या है? भगवान का प्रकाश। जी, तो कौन मुझे बताएगा ये प्रकाश कहाँ से निकलता है? ये प्रकाश कहाँ से निकलता है? तो प्रकाश, जी, तो सबको पता होगा कि प्रकाश कहाँ से निकलता है। भगवान की प्रकाश है वह भगवान के शरीर से निकलता है। शरीर, भगवान के शरीर से प्रकाश निकलकर वो ब्रह्म ज्योति में व्याप्त हो जाता है। और फिर जितने भी सूर्य है अभी, है ना, ये सूर्य देखो हमको प्रकाश दे रहा है। ये सूर्य को प्रकाश कहाँ से आ रहा है आपको पता है? ये सूर्य को प्रकाश ब्रह्म ज्योति से आ रहा है। और ऐसे कितने सूर्य है? कितने सूर्य है कि कौन मुझे बताएगा? कितने सूर्य है? हाँ, ऐसे अनंत कोटि सूर्य है। तो आप बोलोगे मुझे जरा 2-4 दिखाइए, तो क्या हम दिखा सकते हैं किसी को? मैं भी नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो इनको इतने सारे सूर्यों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? अगर कोई आपको पूछेगा तो इनको एनर्जी मिलती है ब्रह्म ज्योति से। ओके, और ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति। ठीक है, क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 7। जी, तो अभी 7वें श्लोक में कहते हैं कि अभी मैं आपको इस श्लोक का अर्थ शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, अभी 7वें में कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी 8वें में कहते हैं कि कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वव्यापी है और विष्णु के स्रोत है। तो यहां से वो शुरुआत कर रहे हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण विष्णु के स्रोत है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण आनंदमय है। सच्चित आनंद, ऐसा आप लिख सकते हो। भगवान कैसे हैं? भगवान है सच्चित आनंद। कौन मुझे बताएगा सच्चित आनंद का अर्थ क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। सच्चित आनंद किसे कहते हैं? जी, प्रश्न भी लिखिए आप। सच्चित आनंद किसे कहते हैं? सत का अर्थ क्या है? सच्चित आनंद। जी, रंजना माता जी। बाबू जी आपके चरण में प्रणाम, सभी को चरण में प्रणाम। तो गुरु सत्य मतलब हुआ, मतलब जो पूर्ण परम पूर्ण सत्य है, और चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब जो पूर्ण आनंद से भरपूर है। मतलब पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सत्य से, जो मतलब पूर्ण आनंद से जिनका ये शरीर बना हुआ है, उसको सच्चित आनंद कहते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा लगा जी। शीनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सच्चित आनंद का मतलब, सत्य मतलब जो सत्य है, चित मतलब जो चिन्मय है,
आनंद मतलब जो सबको आनंद देने वाले हैं, जो पूर्ण रूप से आनंद वही है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। जी ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सत मतलब शाश्वत, चित मतलब चिन्मय और आनंद मतलब पूर्ण आनंदमय में जो होते हैं। ओके, एक आपने गड़बड़ किया। ओके, रीना गंगवार, सच्चिद आनंद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत का मतलब प्रभु जी शाश्वत, चित्त मतलब जिनको सब हर चीज का ज्ञान है, और आनंद मतलब वो हमेशा आनंद में रहते हैं। हाँ जी, तो सत मतलब शाश्वत, चित मतलब आनंदमय, पूर्ण आनंदमय, और आनंद सच्चित सॉरी चित मतलब ज्ञानवान, और आनंद मतलब चित्त मतलब ज्ञान में। ओके, सच्चित आनंद। सत मतलब लिखिए शाश्वत, लिखिए आप वापस भूल जाएंगे। सच्चिद आनंद, सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानवान, ज्ञानमय, और आनंद मतलब ब्लिसफुल। तो हमारा शरीर कैसा है सबका, तो ऐसा ही है, सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय, और तीसरा है आनंद मतलब ब्लिसफुल। तो अगर हम भगवान के धाम जाएंगे तो क्या हमको पता चलेगा कि मैंने इस संसार में कितने जन्म लिए हैं, कितनी बार मैंने किसी की पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, कितनी बार मैंने जॉब किया है, क्या मुझे पता चलेगा? तो पता चलेगा आपको। कितने लोगों को ये जानना है, सबकी इच्छा हो रही है कि पिछले जन्म कितने जन्म मैंने लिए थे, क्या क्या मैं बना था, क्या क्या बनी थी। सबको बहुत क्यूरियोसिटी है, तो क्यूरियोसिटी चाहिए, तो फिर जल्दी जल्दी माला करके भगवत धाम जाइए, वहां पर फिर आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 9। श्लोक क्रमांक 9 में बताया है कि अभी ये कृष्ण कौन है ये बता रहे हैं। तो भागवत में कहा गया है कि ये कृष्ण कौन है, नंद महाराज के पुत्र है। लिखिए, 9 में लिखा है कि ये कृष्ण है, वो नंद महाराज के पुत्र है, और वही भगवान चैतन्य के रूप में नवद्वीप में अवतरित हुए हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, नंद महाराज के पुत्र। नंदसुत, नंदसुत ऐसा एक भजन भी है, बलराम होइलो निताई। ओके, ओके, लिखा आपने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कविराज गोस्वामी, श्लोक क्रमांक 10। तो श्लोक क्रमांक 10 में कहते हैं कि ये जो निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा और भगवान, ये तीनों व्यक्तित्व का स्रोत चैतन्य महाप्रभु है। तो यहाँ पर फिर वो क्या कर, एक इक्वेशन बोल रहे, A = B, B = C, therefore A = C। तो इस तरीके से वो यहाँ पर हमको बता रहे कविराज गोस्वामी। पहले तो उन्होंने कृष्ण की महिमा गाई इन तीन तत्वों से, और फिर वो कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु कहे, और फिर अगले श्लोक में वो कह रहे हैं कि यही तीन स्रोत है, वो चैतन्य महाप्रभु से ही प्रकट हुए हैं। तो आप लिखिए, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों चीजें चैतन्य महाप्रभु से ही प्रकट होती है। ओके, जी अगला श्लोक क्रमांक 11। श्लोक क्रमांक 11 में कहते हैं कि जी, तो श्लोक क्रमांक 11 में भी वही है जो एक्चुअली भागवत का एक श्लोक है, वदंति तत्त्वविद यत्वं ज्ञानाद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो वही है, परम सत्य के 3 स्तर है। आप लिखिए अगर आपको लिखना है तो, कि निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसी पे वो घूम रहे हैं फिलहाल, मतलब कविराज गोस्वामी, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है समझना। कैसे हम समझेंगे इन 3 चीजों को? तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि इस संसार में जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, उसमें से मोर देन 50% लोग ब्रह्म ज्योति में ही घूमते हैं, निर्विशेष ब्रह्म। वो उसमें से थोड़े प्रतिशत लोग हैं वह परमात्मा की पूजा करते हैं,
और बहुत माइनर क्वांटिटी में लोग हैं, 1% 2%, जो डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं कृष्ण के रूप में, है ना। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद की किताबों के माध्यम से, इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम ब्रह्म ज्योति से भी आगे जाकर, परमात्मा से भी आगे जाकर ये जान रहे हैं कि कृष्ण कौन है। ओके, श्लोक क्रमांक 12। श्लोक क्रमांक 12 में लिखा है कि उपनिषद को निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, जो भगवान की चमकती कांति है। ठीक है, तो भगवान की चमकती कांति क्या है? उपनिषद है, 108 उपनिषद, है ना, जो हमने आपको बताया था। एक बार मैं उपनिषद देखने के लिए एक बार मैं बेंगलोर गया था, 2009 या 10 की बात होगी। जो मेरे जो क्या बोल सकते हो पथ प्रदर्शक गुरु है देवदत्त प्रभु, हम दोनों गए थे वहां पर बेंगलोर में। तो जाने का मेरा जाने का वहां पर यही था कि उसको कंपनी दे, और वो इसलिए गया था कि उसको उपनिषद पढ़ने थे। तो हालांकि हम दोनों इस्कॉन में थे, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें उपनिषद में, लेकिन बेंगलोर में उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो पहली बार मैंने इतनी किताबें देखी जिंदगी में। मैं जब लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश किया तो देखा क्या, मेरे आंखें तो चमक गई। इतने 108 उपनिषद के इतने बड़े बड़े कप्पे थे, और उसने फिर उसमें से 10,000 की किताबें खरीद ली, अभी भी मुझे याद है। और 10,000 की किताबों का बोझा इतना था कि फिर हम दोनों सोचने लगे कि इसको अभी मुंबई कैसे लेके जाएंगे बेंगलोर से। तो फिर बहुत सोचने के पश्चात फिर प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ी इतनी किताबें लेने के लिए। और फिर जैसे किताबें उसके घर में चली गई, तो उन्हीं किताबों ने, मुझे लगता है कि बेडरूम का एक कोना है, मुझे लगता है कि आधा जो बेडरूम का भाग है वो सारा उस किताबों से भर गया, है ना। और मैं मन में सोच रहा था कि इतनी सारी किताबें प्रभुपाद ने लिखी हुई है, वो मैं अच्छे से समझा नहीं हूँ, और ये किताबें पढ़कर मैं क्या समझूं। लेकिन आज अभी पता चल रहा है कि हम प्रभुपाद जी की किताबें हैं वो भगवान के स्तर पर हमको मार्गदर्शन कर रही है, और देवदत्त प्रभु ये भगवान की कांति खोजना चाह रहे थे, है ना। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है उपनिषद क्या है? उपनिषद है भगवान की चमकती कांति है। ओके, तो उपनिषद पढ़कर आपको कहाँ तक आप आ सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति तक आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 13। श्लोक क्रमांक 13 में लिखा है कि जी, श्लोक क्रमांक 13 में लिखा है कि जिस तरह से नग्न आंखों से कोई चमकता हुआ सूर्य को नहीं देख सकते, उसी तरीके से भगवान कृष्ण की दिव्य गुणों को नहीं समझ सकते, ऐसा लिखा हुआ है। जिस तरह से हम ये नंगी आंखों से सूर्य को जो चमक रहा है उसको नहीं देख सकते, उसी तरह से हम केवल दार्शनिक तत्व ज्ञान से जो कि इस नग्न आंखों की तरह है, हम भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण सूर्य की तरह है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर नग्न आंखें क्या है? तो दार्शनिक सिद्धांत है, और सूर्य कौन है? तो भगवान कृष्ण है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। समझ आ रहा है आपको? जी, ये लाइन फिर से बोल दीजिए। जी, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नंगी आंखें हैं, नग्न आंखों से हम सूर्य को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर नग्न आंखें क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। और सूर्य क्या है? सूर्य है भगवान श्री कृष्ण। तो हम दार्शनिक सिद्धांतों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, जिस तरह से नग्न आंखों से हम चमकते हुए सूर्य को नहीं देख सकते। तो इस तरह से ये है। केवल 8 ही लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, अशोक चावला प्रभु, आपको समझ में आ रहा है? अशोक चावला प्रभु, जी जी गुरुजी, आ रहा है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नहीं, सर के अंदर ही जा रहा है। अंदर ही जा रहा है, चलो। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 14।
जी, श्लोक क्रमांक 14 में प्रवेश कर जी। श्लोक क्रमांक 14 में कहा गया है कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, जो चमकते हुए निर्विशेष ब्रह्म के और लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में अनगिनत ग्रह है ना, अनगिनत ग्रह है, उनके भी स्रोत है। जी, लिखिए ऐसे कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा कर रहा हूँ, जो निर्विशेष ब्रह्म और लाखों करोड़ों जो गुना जब ब्रह्मांड है, लाखों करोड़ों गुना जो ब्रह्मांड है ना, जिसमें 6 ऐश्वर्य है, उनमें जो 6 ऐश्वर्य है उनके भी स्रोत है, उनके भी स्रोत है। ओके, नेक्स्ट कौन सा नंबर श्लोक है अभी? अच्छा, 15। ओके जी, श्लोक क्रमांक 15। श्लोक क्रमांक 15 में लिखिए कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जितने भी निर्विशेष जो ब्रह्म है, जो भी निर्विशेष ब्रह्म है, जो सारे ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, जो सारे ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, जितने भी निर्विशेष ब्रह्म है जो सारे ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, वह मेरे आराध्य गोविंद का प्रकाश है, मेरे आराध्य गोविंद का प्रकाश है, या उसका तेज है। उसका तेज है। ओके जी, श्लोक क्रमांक 16। आई वर्शिप गोविंद, ही इज माई लॉर्ड, ओनली बाय हिज ग्रेस एम आई एम्पावर्ड टू क्रिएट द यूनिवर्स। देखो, बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं ब्रह्मा जी। अभी कह रहे हैं कि मैं गोविंद की पूजा कर रहा हूँ, वो मेरे भगवान है, और उन्हीं की कृपा से मैं ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा हूँ। जी, लिखिए, मैं गोविंद की पूजा कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान है, और उन्हीं की कृपा से मुझे शक्ति प्रदान की गई है कि मैं ब्रह्मांडों की निर्मित कर सकूं। श्री गोविंद भजी। ओके, ये सब कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ओके, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं श्लोक क्रमांक 17 में, 17, ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे सन्यासी जो शारीरिक तपस्या करते हैं, ऐसे सन्यासी जो शारीरिक तपस्या करते हैं,
वह निर्विशेष ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। वह निर्विशेष ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। और अभी जो जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वह ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। श्लोक क्रमांक 18 में जो योग शास्त्रों में वास करने वाले परमात्मा के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं वह भगवान गोविंद के व्यक्तिगत विस्तार का एक पूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। मतलब वह कहाँ प्रवेश करते हैं? तो जो लोग परमात्मा की पूजा करते हैं तो उनको कौन सा स्थान मिलता है? वैकुंठ में। तो उनको शांत रस प्राप्त होता है। शांत रस। गुरुजी 18 योग शास्त्र मतलब जो योगा करते हैं। हाँ, योग शास्त्र मतलब जो अष्टांग योगी होते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। जो अष्टांग योगी होते हैं प्राण अपान वो सब करते हैं, समान उदान ध्यान धारणा समाधि। तो ये सारे योग शास्त्रों में वास करने वाले जो योगी होते हैं वह परमात्मा की पूजा करते हुए वह वैकुंठ के शांत रस में प्रवेश करते। ओके, शांत रस का अर्थ क्या है? तो वहां पर वह भगवान का कोई जूता वगैरह बन जाते हैं। ओके, परमात्मा अंडरस्टैंडिंग। और श्लोक क्रमांक 19 में कहा गया है कि जैसे एक सूर्य अनगिनत रत्नों में प्रतिबिंबित होता है। बहुत अच्छी उपमा दी है। सूर्य को आपने देखा है? अगर सूर्य के सामने आप बहुत रत्न अगर आप रखेंगे नीचे, या फिर आप अगर कांच के टुकड़े भी रखेंगे, है ना, तो आपको हर कांच के टुकड़े में सूर्य दिखाई देगा। बराबर है? ठीक उसी प्रकार से भगवान गोविंद स्वयं को सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, वापस बता रहा हूँ। इसको कैसे लिखें? जिस तरह से सूर्य है अपने को अनगिनत रत्नों में प्रतिबिंबित कराता है, जिस तरह से सूर्य अपने को अनगिनत रत्नों में प्रतिबिंबित कराता है, ठीक उसी प्रकार गोविंद स्वयं को सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट कराते हैं। परमात्मा के रूप में प्रकट कराते हैं। ठीक है, अभी श्लोक क्रमांक 20 आखिरी श्लोक आज का जी। तो यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि अभी सब ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का हो गया कंप्लीट। अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं कि मैं तुमसे और क्या कहूं। क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं तुमसे और क्या कहूं, इस ब्रह्मांड का तुम ब्रह्मांडीय जो भी तुम ऐश्वर्य देख रहे हो इस ब्रह्मांड में, है ना, वो सारा ऐश्वर्य है वो मेरे एक अंश से व्याप्त है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बराबर है, ये एक्चुअली गीता का श्लोक है। पता है कौन सा वो श्लोक है? गीता का, भगवत गीता का ये श्लोक है, 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्भ्यम अहम इदम कृष्णम एकादशेन स्थितो जगत। तो कहते हैं कि मैं तुमको और कितना कहूँ अर्जुन, ये पूरा ब्रह्मांड तुम देख रहे हो ना,
हम तो देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन अर्जुन देख सकता था, है ना। हम क्या देखेंगे इस आंखों से, है ना। हम अपने आप को भी देख सकते हैं क्या इन आंखों से? हमें तो आईने की आवश्यकता पड़ती है, बराबर है। हम अपने आप को भी नहीं देख सकते, तो हम क्या ब्रह्मांड को देखेंगे? और अगर और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, इस ब्रह्मांड का देख रहे हो ना, इस ब्रह्मांड का जो तुम ऐश्वर्य देख रहे हो, वो मेरे जितने भी अंश है ना, मेरे एक अंश का विस्तार स्वरूप समझो, वही सब ये काम कर रहा है, बराबर है। अभी आप बोलोगे कि कृष्ण कौन है फिर? कृष्ण, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन है ना? कृष्ण को जानना कठिन है, क्योंकि कृष्ण है, ये इनके ऐश्वर्य ही समझ में आते हैं ना, तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का स्रोत मेरा एक अंश है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज हमने 20 श्लोक कवर किए, ज्यादा मैं नहीं दौड़ाया आपको। तो आज का आपको कैसे लगा? स्पीड सबको ठीक लगा? ठीक है गुरुजी, ये ठीक है। ये स्पीड ठीक लग रहा है आपको? ओके। तो कल मैंने आपको बहुत दौड़ाया, इसका मैंने आज प्रायश्चित किया, ताकि टोटल कितने आप श्लोक लोग, हैं गुरुजी? इस अध्याय में बहुत श्लोक है टोटल, दूसरे अध्याय में। ହେଇଗଲା। प्रभु जी 121 है। हाँ बराबर, 121 श्लोक है। तो मुझे लगता है कि ये भगवत गीता से भी 3 गुने 4 गुना चैप्टर है ना। लेकिन ये फटाफट हो रहे हैं, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। 20-20 श्लोक भी हम कवर किए, तो एक हफ्ते में मुझे लगता है कि 6 क्लास लगेंगे केवल पूरा करने के लिए एक चैप्टर। मुझे लगता है कि ये 3 महीने 4 महीने 3 महीने तक चला जाएगा आदि लीला को केवल एक फ्लो को समझने के लिए। लेकिन अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमें इस अंदर प्रवेश करने के बाद समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी तक कविराज गोस्वामी ने अपनी दिल की बात बताना शुरू भी नहीं किया है, समझ में आ रहा है? अभी भी हम सब ऐसे बाउंड्री में घूम रहे हैं, है ना। जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कविराज गोस्वामी किस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने के लिए? जी आ रहा है जी। तो ओके, तो इस उत्साह को बना के रखिए, क्योंकि ये उत्साह ही हमको भक्ति में आगे ले जाता है। एक बार हमारा उत्साह कम हो गया तो फिर हमारी रुचि भी कम हो जाती है शास्त्रों का अध्ययन करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए आज के टॉपिक के ऊपर। जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी से आपने पहले श्लोक में बताया था कि जो पतंजलि है और जो मतलब ये जो सिद्धांत है उनके, जो मगरमच्छ आपने बताया था कि ये सिद्धांत है जो, तो पतंजलि के ये भी योग में आता है, योग शास्त्र तो है। और यहाँ पे आपने 18 उसमें बताया कि जो योग शास्त्र में वास करने वाले कृष्ण की पूजा करते हैं, वैकुंठ में शांत रस का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे तो ये वैकुंठ में वास करते हैं, यहाँ पे इनको सिद्धांत बताया कि जो मतलब सही नहीं है। तो ऐसा कैसा हुआ? मतलब ये समझ नहीं आया। ओके, तो बेसिकली ये जो 6 दार्शनिक सिद्धांत है ना, जो जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, वो कणक, कपिल, और उसके पश्चात फिर योग सूत्र है, पतंजलि है, फिर है ना, फिर बुद्ध का तत्व ज्ञान है। ये सारा तत्व ज्ञान है, ये मायावादी तत्व ज्ञान। मायावादी तत्व ज्ञान मतलब जो भगवान से अलग अलग है ना, भगवान से अलग है ये, मतलब ये असत्य है, सत्य नहीं है। ये 6 दार्शनिक सिद्धांत है, बराबर है। और ये जो ब्रह्म योग शास्त्र में आते हैं। पतंजलि का जो है ये भी योग शास्त्र में तो आएंगे गुरुजी। जो ये है पतंजलि को तो हम योग शास्त्र, उसमें ध्यान, समाधि, साधना, ये सब तो आता है, उदान, अपार, व्यान। हाँ नहीं, उसमें आता है, आप बराबर बोल रहे हैं, है ना, योग शास्त्र। लेकिन
उसमें से कुछ शास्त्र है, अभी छह दार्शनिक शास्त्र है, उसमें से केवल वो जो योग शास्त्र है जिसको परमात्मा की पूजा बताई गई है, है ना, उसको फॉलो करके आप वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं, है ना। वैकुंठ लोक में भी आपको शांत रस ही मिलेगा, वहां पर ऐसे डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं मिलती, क्योंकि भगवान के संबंध से वो अपरिचित है। लेकिन उसको ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है, परमात्मा का भी ज्ञान है कि परमात्मा कृष्ण है करके, तो इसलिए उसको वहां तक वो चला जाता है। हाँ, 1 मिनट में जरा एक सर्च करता हूँ, है ना, आपको पूरा ही में 6 सिद्धांत है वो बता देता हूँ, थोड़ा सा समय है तो फिर हमको पता चलेगा कि दार्शनिक वेदों में से जो दार्शनिक सिद्धांत है जो मगरमच्छ की तरह है। ओके, तो लिखिए जरा 6 दार्शनिक शास्त्र, अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो। पहला लिखिए सांख्य। सांख्य, इनके प्रणेता है कपिल मुनि, सांख्य। ओके, 6 दर्शन कहते हैं। दूसरा है योग के है पतंजलि। तीसरा है न्याय के है गौतम। चौथा है वैशेषिक तत्वज्ञान, ये है कणाद। मीमांसा जेमिनी, और वेदांत ये है व्यासदेव। तो बेसिकली ये 6 दार्शनिक है, सिद्धांत है। इनमें से कुछ सिद्धांत है वह बोनाफाइड है, जैसे वेदांत है, उपनिषद है ना, तो ये बोनाफाइड है ना। सांख्य ये भी बोनाफाइड है क्योंकि वो भगवान कपिल मुनि ने ही बताई है। योग शास्त्र पतंजलि ने कहा है, ठीक है। और उसके पश्चात जो गौतम, कणाद, जेमिनी और बादरायण, ये जितने भी है ये सब उपनिषदों से मिलते हैं। मुझे लगता है 6 के 6 दर्शन शास्त्र है, ये वेदों से कनेक्टेड है। ओके, ये वेदों से कनेक्टेड है। हाँ, ये 6 के 6 वेदों से। तुम्हारा नाम लीजिए इनके प्रभु जी। हाँ, पहला है सांख्य योग, सांख्य जिनके प्रणेता है कपिल मुनि, जो भगवान के अवतार है। दूसरा है योग शास्त्र जिनके प्रणेता है पतंजलि। तीसरा है न्याय शास्त्र जिनके प्रणेता है गौतम मुनि, ठीक है। चौथा है मीमांसा। तो इनके रचयिता है महर्षि जैमिनी। सुना है ना इनके नाम आपने? जैमिनी ऋषि, महाभारत में सुना होगा जैमिनी, फिर ये पतंजलि, फिर ये गौतम मुनि, ये सब है। इन्होंने एक दर्शन शास्त्र। और आखिरी है वेदांत दर्शन, मतलब ब्रह्म सूत्र, है ना। वेदांत दर्शन, इसके रचयिता है व्यासदेव जी। ओके, तो ये 6 ईश्वर है। अगर आपको इसके 6 के में तत्व ज्ञान अगर आपको जानना है ना, तो एक इसमें पूरा क्लास हो जाएगा कि किस तरह से ये मगरमच्छ है। इनको मगरमच्छ क्यों कहा गया है? हालांकि ये वेदों का ही पार्ट है, लेकिन इनको मगरमच्छ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शुद्ध भक्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? भगवत धाम, भगवान के जो गोलोक वृंदावन में जो 5 रस है उसके भीतर जाने के लिए सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये परमात्मा साक्षात्कार तक अंडरस्टैंडिंग देते हैं। एक है ब्रह्म साक्षात्कार और दूसरा है परमात्मा साक्षात्कार। भगवान साक्षात्कार की अंडरस्टैंडिंग ये देते नहीं है, तो इसके लिए हमको भागवत पढ़नी पड़ती है ना। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं ये सारा चीज पढ़ के?
ब्रह्म ज्योति, और दूसरा है परमात्मा साक्षात्कार, मतलब वैकुंठ में शांत रस की प्राप्ति हो सकती है। तो अभी मेरा सवाल है, अगर कोई व्यक्ति ये किताबें पढ़कर वैकुंठ लोक में शांत रस मिल गया तो क्या वो दास्य रस में आ सकता है, साख्य रस में आ सकता है? क्या लगता है आपको? कभी आपने से कभी सोचा? जी फिंगर को रेज कीजिए, क्या आपके ओपिनियन है इस बारे में? क्या वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, या उसको उधर ही रहना पड़ेगा? कंफ्यूज हो गए आप? ओके जी, कंफ्यूज हो गए लगता है। तो जिस तरह से कंपनी में, जी जिस तरह से आप कंपनी में आप देखते हो, अगर किसी प्यून को मैनेजर बनना है तो उसके एग्जाम होती है, वहां पर होती है ना, एग्जाम देखते वो अंदर तक घुस सकता है, जा सकता है। अगर शांत रस वाला व्यक्ति अगर भगवान को देखेगा वहां पर, ये देखो दास्य रस वाला व्यक्ति कितना अच्छा सेवा कर रहा है, तो क्या उसको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा? वहां पर मिलेगा, उसको प्रेरणा मिलेगी, तो दास्य रस में फिर क्वालिफाई होगा, फिर धीरे 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 जा सकता है। बराबर है? तो क्या करना चाहेंगे? इधर ही रहे, किधर बच जाए। ओके ओके, तो इस तरीके से जी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देता हूँ, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने एक आखिरी श्लोक 20 बोला था, जिसमें श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि जो उनका ऐश्वर्य है एक ही अंश से व्याप्त है ब्रह्मांड में। तो गुरु जी कौन से अंश की बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब अंश कैसे? अंश मतलब महाविष्णु है ना, महाविष्णु ये भगवान के अंश है, अंश के अंश के अंश के अंश है ना। भगवान के अंश बलराम जी है, बलराम जी से फिर चतुर्भुज आते हैं, उससे महाविष्णु आते हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मेरा एक अंश है, ये मेरा अंश ये सब कर रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है। तो ये भगवान बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी। एक और क्वेश्चन था, पूछूंगा आपके? हाँ पूछो। गुरु जी, आपने ये बताया कि जैसे कि शांत रस है वह प्रेरणा होता है, तो वह साख्य रस में पूछता है। तो गुरु जी, आपने बताया था पहले कि वह जिस रस में होता है वह उसके लिए बहुत खुशी रहता है उस रस में, तो फिर वह क्यों चाहना चाहेगा उस दूसरे रस में? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है रूबी कुमारी का। अगर मान लो वो अपने में बहुत खुश है, अगर उसको भगवान का जूता बनकर बहुत आनंद आ रहा है ना, या भगवान की कोई सामग्री, तो वो सोचेगा मैं इधर ही ठीक हूँ। ये भी कोई बात नहीं, क्योंकि सारे रस अपने में पूर्ण है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बोलोगे शांत रस वाले को कम आनंद मिल रहा है, ऐसा भी है क्या? ऐसा भी नहीं है। जो आनंद शांत रस वाले को मिल रहा है, उतना ही आनंद माधुर्य रस वाले गोपियों को भी मिल रहा है। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, धन्यवाद हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो आपने सारे दार्शनिक सिद्धांत बताए, इनमें ये 4th नंबर वाला जो है ना, वैश्यसी तत्व ज्ञान, ये क्या है प्रभु जी? वैश्विक तत्व ज्ञान क्या है? तो इसके लिए वो महर्षि कणाद है ना, उन्होंने ये लिखा है ना। अभी मैं इसको पढ़कर आपको बताता हूँ, जितना आपको समझ में आता है आप समझिए। महर्षि कणाद ने इस दर्शन शास्त्र को संसार की उन्नति के लिए लिखा गया था, ताकि मानव कल्याण को कुछ द्रव्य कर्म और इस तरीके से मोक्ष प्राप्ति कर सके, है ना। तो बेसिकली इसमें उन्होंने जीव और ब्रह्म है ना, दोनों ही चेतन है, और दोनों है वह एक नहीं हो सकते। तो इस तरीके से उन्होंने एक दर्शन शास्त्र निर्माण किया है कि जीव और भगवान अलग है, और इसका फिलॉसफी है, ये मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ इसके भीतर, है ना, तो इसके लिए मैं इतना इसमें से जान नहीं सकता हूँ। लेकिन ये छह दर्शन शास्त्र है ना, ये पढ़ने चाहिए। हालांकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा इसको और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो आप थोड़ा सा, अगर आप ये भी करोगे ना, गूगल करोगे, यूट्यूब में जाओगे, तो आपको ये दर्शन शास्त्र के बारे में ना मिलेगा। लेकिन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप ये सारी चीजें किसी भक्त के गाइडेंस में ही करें, है ना। तो फिर इसमें मगरमच्छ के भीतर चले गए तो वापस आने की संभावना बहुत कम है ना। जैसे मेरे एक मित्र है देवदत्त प्रभु, उपनिषद पढ़े और पता नहीं उनको क्या हो गया बाद में, है ना, मूवमेंट को छोड़कर थोड़ा सा डेविएट हो गए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उसमें चले जाए।
ठीक है, ओके। आखिरी क्वेश्चन रीना गंगवार माता जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी अभी जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ तो हमको ये समझ आ रहा था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, फिर 14वां श्लोक जो आया उसमें इसमें ये श्लोक आया उसका ब्रह्म संहिता का, फिर आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो प्रभु जी कैसे कनेक्ट करने की, मतलब कहाँ से तक वो बोल रहे हैं और कहाँ से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और दोनों को कनेक्ट कैसे करें? बेसिकली यहाँ पर है ना, कविराज गोस्वामी है वह पहले अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, और जब उनको कोई चीज याद आती है ब्रह्मा जी की, है ना, तो तुरंत वो अपनी बात कहने से ज्यादा है वह ये पाठकों को सुनाना चाह रहे हैं कि मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूँ, मैं भगवान चैतन्य को भगवान घोषित कर ही रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी भी कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कि वो ब्रह्मा जी को यहाँ पर कोट कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी कभी लेक्चर देते हैं तो प्रभुपाद जी कभी कभी गीता के श्लोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बीच में? ताकि उस सिद्धांत को प्रामाणिक हो जाए, बराबर है। तो उसी तरीके से कविराज गोस्वामी पहले बहुत सारे श्लोक शुरुआत में बोल दिए, और उसके पश्चात फिर उनको ऐसा लगता है कि अभी शास्त्रों के प्रमाण भी देने चाहिए मुझे, तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी का पहला प्रमाण दिया, और उसके बाद भगवत गीता का आखिरी प्रमाण दिया ना, वो जो हमने आखिरी 21वां श्लोक पढ़ा। तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं कि बीच बीच में जब कभी ब्रह्मा जी का प्रार्थना आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो अपना कोटेशन दे रहे हैं कि ये देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, अर्जुन भी यही कह रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय।